law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarisha Patnigire and retired additional commissioner as well as director of Indian School of Law. We were talking about Code of Civil Procedure 1908. We have completed till section 12. Let's go to section 13 and 14, which will complete our jurisdiction of the court and res judicata. Section 13 and 14. Hello students, welcome to ABHI Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarisha Patnigire, retired additional commissioner as well as director of Indian School of Law. We were learning about the Code of Civil Procedure Code 1908 and we have completed in section 12 in the last video lecture. Today we are going to complete section 13 and 14. That will complete our jurisdiction of the court and res judicata. Let's come to section 13. When foreign judgments are not conclusive, we have already heard about foreign judgment. We've already heard about foreign judgment and foreign courts as per a definition clause was concerned. So today we are going to look at section 13. Section 13. Okay. A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directed, judicated upon between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same within, except how we will read it. Section 13 again. I was a little disturbed. Let's see it once again. A foreign judgment shall be conclusive to any matter thereby directly adjudicated upon between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, except A, where it has been pronounced by the court of competent jurisdiction, where it has not been given on the merit of the case, where it appears on the face of the proceeding to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law, in case in which such law is applicable, where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice, where it has been obtained by fraud, where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India. Let's understand the meaning of 13. आइए हम जो सेक्शन 13 है उसके मीनिंग को देखेंगे. फॉरेन जजमेंट पास हो गई है और फॉरेन जजमेंट पास होने की वजह से हमारे इंडिया में सिविल सूट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है. पहली बात तो हमको सेक्शन 13 का मीनिंग समझना होगा. हमने सेक्शन 13 को बैरक से पढ़ा. मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अपने बैरक को खोले और सेक्शन 13 को ध्यान से पढ़ लें. सेक्शन 13 डील्स विद कंक्लूजन ऑफ फॉरेन जजमेंट. ये जो सेक्शन 13 है फॉरेन जजमेंट के विषय में कहता है व्हेन अ जजमेंट इज गिवन बाय अ कोर्ट इन अ फॉरेन कंट्री विल बी एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग इन इंडिया. इसका अर्थ ये है कि फॉरेन कंट्री में कोई भी फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कब इंडिया में बाइंडिंग हो सकता है. ये सेक्शन 13 का मीनिंग है. इसके लिए सेक्शन 13 इंट्रोड्यूस किया गया है. इसका जनरल रूल हम देखते हैं. A foreign judgment is conclusive regarding the matters directly adjudicated upon between the same parties. मतलब क्या है, जो इंडिया में जो दोनों पार्टी है उसी दोनों पार्टी अगर फॉरेन में कोई दो पार्टी रहेगी और उसी दो पार्टी के खिलाफ अगर फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो वो जजमेंट एप्लीकेबल होगा. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सेक्शन 13 में 6 एक्सेप्शन है. There are certain 6 exceptions where judgment will not be recognized as conclusive in India. आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से एक्सेप्शन है. पहली बात ऑब्जेक्ट एंड पर्पस. इसका ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है सेक्शन 13 का. The principle behind section 13 is based on the doctrine of res judicata and international law respecting the final decision of foreign courts, provided the judgment was delivered fairly by a competent court in accordance with justice and Indian law principles.
देखिए, हमने तो रेजुडिकाटा पढ़ लिया है। रेजुडिकाटा में क्लियर कट था कि एक बार डिसीजन हो गया सब्जेक्ट मैटर के ऊपर और पार्टी सेम रही, उसी लिटिगेशन को वापस दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर हुआ क्लोज से डिसाइड होगा तो रेजुडिकाटा आपने पढ़ा था। अब सेक्शन 13 में जो जजमेंट पास हुआ है, ये अगर भले फॉरेन में क्यों ना, फॉरेन कोर्ट से क्यों ना दिया हो और इंटरनेशनल लॉ पे भी क्यों ना हो, उसका डिसीजन को इंडिया रिस्पेक्ट करती है और रेजुडिकाटा अप्लाई करती है। तो 13 का ऑब्जेक्टिव पर्पस ये है कि फॉरेन के डिसीजन पर भी रेजुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। द जजमेंट जो दिया गया है फॉरेन कोर्ट ने वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए और इन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड इंडियन लॉ प्रिंसिपल। अब हम जो 6 एक्सेप्शन है उधर हमने देखे नहीं, लेकिन अभी हम 6 एक्सेप्शन देखने वाले हैं कि कब फॉरेन जजमेंट लागू होगा, मतलब कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट। A foreign judgment is generally binding in India, can be enforced as if it were a decree of an Indian court, provided it meets the condition laid down in section 13. तो क्या कह रहा है सेक्शन 13 का ये एक्सप्लेनेशन? फॉरेन जजमेंट इंडिया में कब लागू होगा, वो कब एनफोर्स हो सकता है, वो डिग्री इंडिया में कब एग्जीक्यूट हो सकती है, जब 13 में जो कंडीशन है वो फुलफिल होंगे। तो 13 में कौन कौन से कंडीशन है हमने देखा था, वो 6 कंडीशन देखेंगे। द जजमेंट में इन्वॉल्व द सेम पार्टीज, मैंने आपको पहले ही कहा सेम पार्टीज होनी चाहिए, इशू सेम होना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शन देखते हैं जजमेंट का, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव ज्यूरिडिक्शन। जो फॉरेन कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया है उसको ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। अगर उसकी ज्यूरिडिक्शन नहीं होगी या वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा उस मैटर को हियर करने के लिए, तो ये जजमेंट इंडिया पर बाइंडिंग नहीं है, भले भी दोनों पार्टी सेम हो या सब्जेक्ट मैटर भी सेम हो। उसके बाद सेकेंड एक्सेप्शन, मेरिट, जो जजमेंट दिया गया है वो मेरिट पर बेस्ड होना चाहिए। अगर केस मेरिट पे डिसाइड नहीं हुई है और प्रॉपर आर्ग्यूमेंट और एविडेंस नहीं रखे गए और जजमेंट कोई डिफॉल्ट में पास हो गया है तो वो जजमेंट लागू नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं incorrect view of international law or Indian law. If the foreign court misapplied international law, which is recognized by or applicable by Indian law, the judgment is not binding in India. तो हमको याद रखना है, इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू अगर लिया या इंडियन लॉ का अगर इनकरेक्ट व्यू लिया फॉरेन कोर्ट्स ने, तो वो जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हम फोर्थ एक्सेप्शन को देखते हैं, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है और जजमेंट इम्पार्शियल नहीं होगा, प्रोसेस इम्पार्शियल नहीं होगी, तो वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगा। पांचवा, ऑब्टेन बाय फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स से अगर कोई जजमेंट पास हो गया, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन इंडिया। ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, अगर जजमेंट एनफोर्स करने के टाइम अगर वो जजमेंट कोई भी इंडियन लॉ को वायलेट करता है तो इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो हमने देखा 6 एक्सेप्शंस को देखे थे, आइए हम उसको रिव्यू करते हैं फिर से एक बार। ये जो 6 एक्सेप्शन है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, नॉट ऑन मेरिट, incorrect view of international law taken or Indian law taken by the foreign court, violation of principle of natural justice, obtained by fraud, breach of Indian law। ये 6 exceptions है। आइए हम सेक्शन 13 का की प्रिंसिपल देखते हैं। व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 13? प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी। फॉरेन जजमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी वैलिड unless one of the exception is proven by the party challenging it। मतलब अगर फॉरेन जजमेंट तब तक वैलिड होगा तब तक अगर कोई पार्टी ये 6 एक्सेप्शन से ऊपर जजमेंट को चैलेंज ना करे। एनफोर्समेंट अंडर सेक्शन 44A, 44A जो सेक्शन है उसके अंदर फॉरेन जजमेंट जो दिया गया है उसका एनफोर्समेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम स्कोप ऑफ इंक्वायरी देखते हैं। इंडियन कोर्ट do not really examine the merits of the foreign judgment but only check whether it
फॉर अंडर एक्सेप्शंस इन सेक्शन 13। अगर कोई भी सेक्शन 13 के एक्सेप्शन में नहीं बैठता है तो फॉरेन जुरिडिक्शन एनफोर्सेबल होगा इंडिया में एज पर सेक्शन 13। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल को हम देखते हैं। कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, यूएस कोर्ट passes a judgment against Indian citizen who was never served the summons and who never appeared in the case, ऐसे जजमेंट को इंडिया में एनफोर्सेबल नहीं होगा क्यों? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया है। नॉट ऑन मेरिट्स, a foreign court dismisses the case because defendant failed to appear without evaluating evidence। अगर मेरिट पर डिसाइड नहीं है तो भी फॉरेन जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर हम देखते हैं फ्रॉड। इफ पार्टी मिसलेड अ फॉरेन कोर्ट और मिसलेड करके फेवरेबल जजमेंट लिया है तब भी वो इनफोर्सेबल नहीं होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। सेक्शन 13 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सेक्शन 13 इज relevant in cases involving cross border dispute such as international commercial law, commercial matters, डिवोर्स है, कस्टडी ऑफ डिग्री है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। उसके बाद इंडियन कोर्ट यूजेस सेक्शन 13 टू इंश्योर फॉरेन जजमेंट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, लीगैलिटी एंड जुरिडिक्शनल प्रोप्राइटी बिफोर एनफोर्सिंग देम। इसके रिलेटेड प्रोविजन कौन कौन से है? सेक्शन 44 है। सीपीसी का रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 44 है। डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। Section 14 है presumption that foreign judgment is valid unless proven otherwise। तो ये दो रिलेटेड सेक्शंस है। आप सेक्शन 13 के बारे में 44 लिख दीजिए, 14 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों के कोरिलेशन के साथ ही वो सेक्शन 13 एप्लीकेबल हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्लॉज मैंने आपको हर एक क्लॉज बताया है। पहले हम देखते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। A foreign judgment is not conclusive if the court that gave it lacked jurisdiction according to the principle of private international law recognized in India. If, for example, if a foreign court passes a decree against a Indian resident who was never present, never submitted, or never agreed to do that, jurisdiction is not binding. केस तो है सत्यवती सिंह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1975 का। नेवाडा यूएस डाइवोर्स डिक्री वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज़ नाइदर पार्टी वाज डोमिसाइल्ड देयर एंड द कोर्ट लैक्ड जुरिडिक्शन। उसके बाद सेकंड एक्सप्लेनेशन है नॉट गिवन ऑन मेरिट्स। अ जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन फेयर कंसीडरेशन ऑफ एविडेंस एंड आर्गुमेंट। हम देखते हैं एक्स पार्टी जजमेंट दिया है विदाउट एग्जामिनिंग मेरिट, वो कंक्लूसिव नहीं होगा, इन्फोर्स नहीं होगा। केस लॉ क्या है? इंटरनेशनल वुलन मिल्स वर्सेस इंडियन स्टैंडर्ड वुल यूके लिमिटेड 2001 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज इंडियन लॉ। हमने पहले ही बताया कि अगर जजमेंट देने के वक्त इंटरनेशनल लॉ का व्यू बराबर नहीं लिया गया हो या इंडियन लॉ को रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया हो और रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हो तो भी जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा, लागू नहीं होगा इंडिया में। तो हम इलिस्ट्रेशन देखते हैं। इफ अ फॉरेन कोर्ट refuses to apply Indian matrimonial law, marriage solemnized in India, his judgment may not be recognized in India। फिर बी को देखते हैं। Opposed to natural justice, a judgment obtained in violation of fair procedure, like no notice, no opportunity to be heard, or a biased tribunal is not the conclusive principle। No one should be condemned or hurt। ये हमारा प्रिंसिपल है, इसको याद रखना है। केस हुआ है आर विश्वनाथन वर्सेस रुकनुल मुकिल सैयद अब्दुल वाजिद। सुप्रीम कोर्ट का 1963 का जजमेंट है जहां पर नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया गया। obtained by fraud, if the foreign judgment was obtained by fraud, it cannot be recognized। केस हुआ है एसपी चेन्नई बैंगलोर वर्सेस जगन्नाथ। ये फ्रॉड वायलेट ऑल जुडिशियल एक्ट, फॉरेन जजमेंट नो एक्सेप्शन। उसके बाद सस्टेन अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। इफ द फॉरेन जजमेंट अपहोल्ड्स समथिंग इलीगल अंडर इंडियन लॉ, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। अगर कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता
ये जो हमने 6 एक्सेप्शन पढ़े, अगर उसमें से कोई भी एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता तो ही फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, इंडिया में एनफोर्स होगा और 44A के अंदर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन इन कनेक्शन विद सेक्शन 14, लेट अस अंडरस्टैंड। सेक्शन 14 provides a presumption that a foreign judgment was given by a competent court unless proved otherwise. So the burden lies on the person challenging the judgment to prove any of the 6 exceptions in section 13. एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने क्या बोला, सेक्शन 14 प्रिज्म करता है फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव है अनलेस कोई पार्टी आकर उस जजमेंट को ये 6 एक्सेप्शंस के अंदर चैलेंज नहीं करता कि भाई ये जो जजमेंट है ये 6 एक्सेप्शन में गिरता है, इसीलिए ये जजमेंट इंडिया में एनफोर्सेबल है। एग्जांपल देखते हैं। A resident of India is sued in England for a breach of contract. He appears, defends the case and the losses. The English court decree is conclusive in India unless A can show that English court lacked jurisdiction or the judgment was based on fraud. Important केस का समरी हमने ऑलरेडी ये समरी दे दी है, इसको आप अपनी किताब में लिख दीजिए बैरक में, ताकि आपको जुडिशियरी एग्जाम के वक्त या एलएलबी के वक्त आपको काम में आ जाएगा। कंक्लूजन क्या है? रिस्पेक्ट फॉर फॉरेन जेन्युइन फॉरेन जजमेंट। इंडिया हर फॉरेन जजमेंट का रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो कंक्लूजन नहीं होगा। हम देखते हैं सेक्शन नंबर 14, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। अब कौन सा प्रिजम्पशन है? सेक्शन 14 क्या कहता है? हमने 13 में पढ़ा कि जजमेंट कंक्लूसिव होगा जब वो 6 एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता। तो जब कोई जजमेंट एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो सेक्शन 14 कहता है कि हम प्रिज्यूम करते हैं कि जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट में दिया गया है और जिस जजमेंट को उन्होंने प्रोनाउंस किया है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था जुडिक्शन के लिए और वो कोई भी 6 एक्सेप्शन में मिलता नहीं है। तो ये प्रिजम्पशन के साथ हम सेक्शन 14 अप्लाई करते हैं। अभी हम ये नहीं देखते सेक्शन 14 का। सेक्शन 14 creates legal presumption in favor of the competency and regularity of the foreign judgment. When a party produces a certified copy for foreign judgment before an Indian court, okay, it is conclusive. A foreign court had jurisdiction, judgment was validly pronounced. ये सारे चीजों का सेक्शन 14 का मीनिंग है। However, this presumption is not conclusive, it is rebuttable. इसका मतलब क्या है? कंक्लूसिव नहीं है ये। अगर किसी ने चैलेंज किया अंडर 6 एक्सेप्शन तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जजमेंट एनफोर्स नहीं किया जाएगा जब तक पार्टी को सुना नहीं जाए और हमारा सिविल कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन करे। Objective purpose. The purpose of section 14 is to facilitate recognize of foreign judgment by Indian court, to simplify the procedure, unnecessary foreign judgment को implement presumption करना बहुत जरूरी है, तो unnecessarily मैटर बढ़ते जाएगा कोर्ट के अंदर। To respect international committee by presuming that foreign courts act fairly within their authority. आइए हम सेक्शन 14 को ब्रेक डाउन करते हैं। एलिमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या क्या हम सेक्शन 14 में छिपी हुई बातें हम देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी मतलब फॉरेन जजमेंट की कॉपी है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। दूसरी प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्फिडेंस। तीसरा रिबेटेबल प्रिजम्पशन। चौथा अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स ऑन रिकॉर्ड। ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर छुपे हुए सेक्शन 14 में। याद रखना जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं ये नेचर ऑफ प्रिजम्पशन, क्या नेचर है प्रिजम्पशन का? सेक्शन 14 lays down presumption of fact, not the presumption of law. That means the court must have presumed the competence initially, but the presumption can be refuted by the evidence showing the foreign court lacks judgment or the judgment was violated by the exception of section 13 of CPC. इंग्लिश स्टेशन को देखते हैं। सपोज अ पार्टी प्रोड्यूसेस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिग्री पास बाय यूके कोर्ट, ओके, द इंडियन कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट यूके कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट, जजमेंट वाज validly passed
However, the defendant can repeat this by showing he was never served notice of the proceeding or UK court had no jurisdiction since he was not resident or did not submit to that jurisdiction. If proved, the presumption under section 14 is displaced. हमने रिजेक्शन ऑफ 13 सेक्शन 13 और 14 का देखा है. सेक्शन 13 बताता है फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव है जब तक एक्सेप्शन में नहीं गिरता. 14 कहता है कि भाई हमने प्रिजम्पशन लिया है ताकि फॉरेन जजमेंट जो है जिस कोर्ट ने दिया वो वैलिड है, कॉम्पिटेंट है और उसके प्रोसीजर प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं. कंडीशन टू अवेल प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 14. The document must purport to be a certified copy of the foreign judgment. Okay, Section 86 of Evidence Act 1872 also presumes the certified copy of foreign judicial records. Judgment should not, on its face, show lack of jurisdiction or violation of principle of natural justice. अब हम रिमिटल ऑफ प्रिजम्पशन को देखते हैं. रिमिटल ऑफ प्रिजम्पशन जो प्रिजम्पशन कोर्ट ने दिया था उस प्रिजम्पशन को रिमिटल करने के लिए हमको एविडेंस लाना पड़ेगा कि फॉरेन कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो वांट ऑफ जुरिडिक्शन चैलेंज की जा सकती है. ये इन Satya versus H. 1975 Supreme Court rejected the foreign divorce decree because the US court lacked jurisdiction. burden of proof किसके ऊपर है? जो चैलेंज करता है उसके ऊपर है. The burden is on the party producing a foreign judgment to produce a certified copy, and the burden shifts to the opposing party to prove that foreign court lack jurisdiction or the judgment is not conclusive under section 13. केस लॉ लिमिटेड सेक्शन 14 का ये सारे केस लॉ हमने देखे. इसमें से अल्कॉन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस KMSA सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जजमेंट है. सेक्शन 14 प्रिजम्पशन अप्लाइज इवन टू द जजमेंट फ्रॉम नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज. मतलब क्या, जिस देश के साथ हमारा करार नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, उनके देश में भी किए हुए जजमेंट सेक्शन 14 अप्लाई करता है और उसकी एनफोर्सेबिलिटी अंडर सेक्शन 13 है. ये हमने जजमेंट देखा नहीं था, बाकी सारे केस लॉ हमने देखे हैं. इफेक्ट ऑफ सेक्शन 14. सेक्शन 14 का इफेक्ट क्या है? इट मेक्स इट इजियर टू प्रूव फॉरेन जजमेंट इन इंडिया, शिफ्ट द burden to the party registering the judgment, ensures balance. Foreign judgments are respected but not blindly accepted. इस बात को हमको याद रखना है. Conclusion. Section 14 CPC complements Section 13 by laying down the procedure rule that every judgment which comes under Section 13 says it is conclusive. Okay, it needs to be challenged. Till once it is challenged, the presumption is rebutted. Otherwise, the court have a presumption that yes, this judgment is a valid judgment. It should have a certified copy. मुझे लगता है कि हमने सेक्शन 13 और सेक्शन 14 अच्छे रीति से देख लिया है. अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में जरूर सवाल पूछिए, या तो लाइक पे जरूर बनता है. चैनल को शेयर करने ना भूलना, ये वीडियो को शेयर करने नहीं भूलना, चैनल को लाइक करना नहीं भूलना. Thank you so much. Let's wait for the next video which will talk about section 15 and 16. Thank you so much.